A very fresh and a good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. I am Fatima Kolsala from Atmiya Green School, Chadeshwar, and welcome back to our English grammar class. So, students, we started chapter number 9, that is simple past, in the previous video. Right? So, let's see what is simple past tense before moving ahead with the remaining chapter. So students, I request you to open page number 64 in your grammar textbook, Adventures with Grammar and Composition. Okay, so as you know that when are we going to use simple past? When we are talking about the actions which are already over, which are already completed. Okay, when we are talking about such actions which are not happening right now, then we are going to use past tense. So let's see some functions of past tense. The first one is to talk about the actions done in past. So we are going to use past tense when we are talking about the actions which are done in past. मतलब जो past में हो चुकी है, जो actions complete हो चुकी है. For that we are going to use simple past tense. जैसे कि यहाँ पे examples है, I walked 2 kilometers yesterday. So they are also giving a specific time when that action was completed. So I walked 2 kilometers. Here your verb is walked. Okay, we have added ed to the base form of the verb to make it past tense. Mansi finished her homework in morning. We laughed a lot at Roshan's jokes. Rasool visited his grandfather in the hospital last Sunday. Now these are all the examples of the actions which are already done in the past, and for that we have used simple past tense. Then for the second situation where we are going to use simple past tenses while telling stories and narrating incidents. जब हम जो चीज़ हमारे साथ हो चुकी है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में या उस इंसिडेंट्स के बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं, राइट, तो उसके लिए हम लोग पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. जो भी एक्शंस होती है, मान लो कि आपने कल पूरा दिन क्या किया, yesterday what you did whole day. ओके, जैसे कि you woke up in the morning, you ate breakfast, you ate sabzi for lunch, you went for a movie, or you went outside for playing games. Okay, you completed your homework, you went to bed at 9 p.m. So these are some of the incidents which you are narrating to somebody else. ठीक है, और जब हम वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी है वो किसी और को बताते हैं, उस वक्त भी हमें पास्ट टेंस यूज़ करना है. And we also use past tense to talk about past habits. That means the habits which we had before, but right now in present we don't have that habit. Okay, मतलब वो habits हमको पहले थी past में, लेकिन अब नहीं है. जैसे कि my father played a lot of cricket when he was young. So फादर कब क्रिकेट खेलते थे? जब वो यंग थे, राइट. मतलब ये एक्टिविटी पास्ट में उनकी एक हैबिट हुआ करती थी जो अब नहीं है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे. ऑब्वियसली हम बच्चे होते हैं तभी स्कूल जाते हैं, राइट. सो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, इट इज शोइंग कि हम ये एक्शन कब कर रहे थे? पास्ट में कर रहे थे, राइट. सो वेंट इज द वर्ब विच इज इन पास्ट टेंस. ठीक है. Now we also studied about the form, that is the spelling format. हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि नॉर्मली जो वर्ब्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरे होते हैं इरेगुलर. रेगुलर वर्ब्स कौन से वाले होते हैं? जिसको हम ईडी या डी या फिर आईईडी ऐड करके चेंज कर सकते हैं, जो बेस फॉर्म है. ठीक है. अभी जैसे वॉक हमारा बेस फॉर्म है, राइट. आवर बेस फॉर्म इज वॉक. उसके अंदर मैं ईडी लगा के उसको पास्ट टेंस बना सकती हूँ. ठीक है. तो ये जब जिसके अंदर ईडी ऐड कर सकते हो या फिर डी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डांस. नाउ इट ऑलरेडी हैज़ ई,
सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड डी, danced. ठीक है, सो ये भी कौन सा वाला कौन सा वाला वर्ब हुआ? रेगुलर वर्ब हुआ, जिसके अंदर हम डी, ई डी या फिर आई ई डी ऐड करते हैं. ठीक है, वो सारे वर्ब्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? रेगुलर वर्ब्स के. उसमें हमने सारे रूल्स पढ़े थे, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ हमें डी ऐड करना होता है बिकॉज द वर्ब इज एंडिंग इन ई. द एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, यू कैन लुक इन द बुक केयर एंड इंक्रीज. देन देर आर सम वर्ब्स विच एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट. ओके, जैसे कि यहाँ पे है, देखो ये सारे एग्जाम्पल्स है. स्टॉप है, टैप, क्लैप, प्रेफर. सो देर आर सम वर्ड्स जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है और उसको हम डबल करके फिर ईडी लगाते हैं. जैसे कि स्टॉप है, उसको हमने डबल पी किया और फिर ईडी ऐड कर दिया. ठीक है, इन द सेम वे इफ द वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, देन वी हैव टू रिमूव वाई एंड ऐड आई ई डी. ओके, जैसे कि ड्राई है एग्जाम्पल. ओके, नाउ इफ यू सी दिस इज वाई and before y there is a consonant, so here we are going to remove y and add ied, so your answer would be dried. ठीक है, सो ये हो गए रेगुलर वर्ब्स. और हमने पढ़े थे इरेगुलर वर्ब्स. नाउ यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इरेगुलर वर्ब्स के अंदर ऐसे कोई रूल्स नहीं होते हैं. ठीक है, दैट चेंजेस टोटली, इट कुड बी एनीथिंग. ओके, जैसे कि यहाँ पे है, सम इरेगुलर वर्ब्स हैव कम्प्लीटली डिफरेंट सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. जैसे कि इसका हो जाता है वॉज और उसका पास्ट पार्टिसिपल है बीन. अभी वो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हम वर्ब्स के 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं नॉर्मली. एक होता है V1, दैट इज बेस फॉर्म. ठीक है, जो हम प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं. दूसरा होता है पास्ट टेंस, जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं. और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, विच वी विल बी यूजिंग इन परफेक्ट टेंसेस, जो अभी शायद आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा. सो वी वुड बी स्टडिंग दैट, बट राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी सिंपल पास्ट टेंस. और वो कौन सा फॉर्म होगा वर्ब का? सेकेंड वाला फॉर्म, दैट इज V2. ओके, सी का सॉ, सीन, आर, वर, बीन, बाई, बॉट, बॉट, गो, वेंट, गॉन. ओके, देन देर आर सम वर्ब्स जिसका एक लेटर या 2 लेटर हम चेंज करके स्पेलिंग चेंज कर देते हैं. जैसे कि सिट का हो जाता है सैट, कम का हो जाता है केम, ब्लीड, ब्लेड, रिंग, रैंग एंड रंग, ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, एंड गिव, गेव, गिवन. सो वैसे ही कुछ रूल्स है जो आप लोग वापस पढ़ सकते हो ताकि हम आगे जा सके. Some words, some irregular verbs change their spelling to auth और UGHT. जैसे कि catch बन जाता है caught, जिसमें हम UGHT लगाते हैं. ठीक है, क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर? TCH निकाल के UGHT ऐड करते हैं. think बन जाता है thought, over here we added OUGHT, fight, fought and bring, brought. And there are some verbs जो सेम ही रहता है, मतलब तीनों फॉर्म. अगर आप इधर देखोगे ये सारे वर्ड्स जो है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल, दे ऑल आर सेम. देर आर नो चेंजेस. कट, 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 शट, 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 सेट, 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 राइट. एंड देर आर सम मोर. Some irregular verbs either take a T or replace the last letter D with the T. जैसे कि deal हो गया dealt, mean हो गया meant, send हो गया sent. Now over here send जो verb है, ठीक है, उसके अंदर क्या किया उन्होंने? D को निकाल के T ऐड कर दिया. ठीक है, उसके पहले जो deal था उसके अंदर सिर्फ ऐड किया था T. bend हो गया bent, lend हो गया lent. ठीक है, एंड देर आर सम वर्ब्स विच हैव बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर. मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में भी आते हैं. जैसे कि लीप है तो हम उसको लीप्ड भी लिख सकते हैं, राइट. तो अभी इसके अंदर अब जब हम ईडी ऐड कर सकते हैं किसी वर्ड में तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? रेगुलर वर्ब्स की. लेकिन इसका एक और वर्ब है जो पास्ट में लिख सकते हैं, वो होता है लेफ्ट.
तो यहाँ पे हमने टी ऐड किया है, राइट. सो दैट बिकम्स इरेग्युलर. सो ये जो वर्ब है लीप, वो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, रेगुलर फॉर्मेट में भी और इरेग्युलर फॉर्मेट में भी. ठीक है. वैसे ही स्पिल हो जाता है स्पिल्ड या फिर स्पिल्ट. लर्न हो जाता है लर्नड या लर्नड. ओके. सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद द वर्ब्स एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर एंड इरेग्युलर वर्ब्स. तो आपको याद रखना है पास्ट टेंस यूज कब होता है, राइट, फॉर द एक्शंस दैट आर डन इन पास्ट, then for telling stories and narrating incidents and for talking about the habits which we had in past. ठीक है. और verbs दो फॉर्म में आते हैं, रेगुलर एंड इरेग्युलर. रेगुलर के लिए जो रूल है वो है हम ed या ied या फिर d ऐड करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन इरेग्युलर में ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. नाउ वी completed exercise A, B and C. I also sent you a video related to it. I don't think that you are watching it. If you are not watching it, please watch it, वरना आपको chapters clear नहीं होंगे. I request you students to please watch the video fully so that if you have any doubt, you can ask me. If you don't watch the video, I don't think it would be able for you to understand the chapter. So I request you students to please watch the video fully. Now let's move on to the next topic, that is page 67, negative sentences. So students, I request you to open your textbook, page number 67. Now we are going to learn about negative sentences. Negative sentence मतलब जो जिस सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव होता है उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू चेंज अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव इन पास्ट टेंस. ठीक है. अभी एक होता है बी वाला वर्ब, जैसे कि वॉज और वर है, और एक होता है जिसके अंदर सिर्फ एक्शन वर्ब होते हैं, जैसे कि रीड, राइट, टॉक, स्पीक, है ना. तो वो दो टाइप के वर्ब्स होते हैं. एक होता है बी, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे वॉज एंड वर. बी वाले वर्ब कौन से हैं आपको याद रखना है. विच आर द बी वर्ब्स फॉर पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के लिए बी वर्ब है वॉज एंड वर. हम वॉज यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ, और वर यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ. और हम वर यू, आई और यू, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और यू हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन, सॉरी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल, बोथ. ठीक है. और थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं ही, शी एंड इट. ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर. फिर वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल और दे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल. अभी इसमें से आपको याद रखना है कि यू जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा वर आएगा. ठीक है. जो बी वाला फॉर्म है वर्ब का वो वर आएगा. ठीक है. और अगर सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ब होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉक्ड या फिर टॉक्ड, फिर स्पोक, राइट, तो उसके अंदर हमें सेंटेंस में क्या ऐड करना पड़ेगा, डिड ऐड करना पड़ेगा. डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट ऐड करेंगे. और जब हम डिड नॉट ऐड करते हैं सेंटेंस में, तो आपका जो वर्ब होगा पास्ट टेंस में, उसको हमें किस में चेंज कर देना है, बेस फॉर्म में. सो अलोंग विथ डिड आपका जो एक्शन वर्ड है, राइट, वो एक्शन वर्ब हो जाएगा आपका बेस फॉर्म, मतलब V1 का फॉर्म आ जाएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू ऑल. Okay, let's see over here. If the sentence does not, to form negative sentence in the past tense, we add not after the be verb. हम लोग क्या ऐड करते हैं, not ऐड करते हैं be verb के बाद, मतलब was not या फिर were not, मतलब wasn't या फिर weren't. लेकिन मान लो अगर सेंटेंस में be verb नहीं है, if a sentence does not have a be verb, then we use did and the base form of the original verb. See, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम सेंटेंस में did यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमारा जो verb होगा
वो बेस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब विदाउट चेंजेस वाला, ठीक है, बेस फॉर्म. ओके, वी हैव टू चेंज इट. इफ द वर्ब इज हैड, इट चेंजेस टू हैव. अगर आपके सेंटेंस में वर्ब है हैड, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर देंगे हैव. हैव हम नॉर्मली प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. हम हैव किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस के लिए. लेकिन जब सेंटेंस में हैड होता है और हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो हम डिड ऐड करेंगे, उसके साथ साथ हम हैड का हैव कर देंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. Let's see the first one. I went to school yesterday. Now over here, if you see, in this sentence, I went to school yesterday. Okay, here the verb is went, जो action verb है ना. Went मतलब जाना. I went to school yesterday. Now what I have to do? It doesn't have a be verb, मतलब was verb नहीं है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? didn't यूज़ करना पड़ेगा. So मैंने यूज़ किया आई डिडेंट गो टू स्कूल यस्टरडे. नाउ इफ़ यू नोटिस ओवर हियर, डिडेंट के साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है वो है गो. वो गो क्या है? वेंट का बेस फॉर्म है, ठीक है. वेंट क्या है? पास्ट टेंस है, और गो हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अलॉन्ग विथ डिड इन द नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है. अगर नेगेटिव नहीं है फिर भी अगर हम सेंटेंस में डिड यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो हमारा एक्शन वर्ड होगा वो बेस फॉर्म में आ जाएगा. सो यू नीड टू रिमेंबर कि सेंटेंस में एक पास्ट टेंस हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं? डिड यूज़ करके, ठीक है. तो जो हमारा एक्शन वर्ब होगा वो उसके साथ बेस फॉर्म में ही रहेगा. ओके, दैट इज V1. Okay, now let's see second one. Pari was happy about her report card. Now as you can see we have be verb was, तो हमको क्या करना है? सिर्फ not ऐड करना है. So it would be Pari wasn't happy about her report card. Let's see the third one. Mohsin had 2 sisters. Now here if you see we have had and that is the only verb in the sentence. Okay, हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है हैड. तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डिडंट ऐड करना पड़ेगा, और फिर जो हैड है उसका क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा. सो योर आंसर वुड बी मोहसिन डिडंट हैव 2 sisters. So I hope that you are clear that how to form negative sentence. If it is a be verb, sentence में अगर be verb है then we are just going to add not. But if the sentence doesn't have a be verb, then we are going to use did. And whenever we use did, along with it, we have to use the base form of the original verb. मतलब base form use करना है, क्योंकि आपका जो sentence होगा उसका verb past tense में होगा, ठीक है. तो जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं didn't use करके, तो हमें वो जो verb past tense में है उसको हमें base form में रखना है. और अगर सेंटेंस में हैड है वर्ब, ठीक है, और कोई नहीं है, सिर्फ हैड वर्ब है, तो उसका हम हैड का हैव कर देंगे और डिडंट यूज़ करेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज डी. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज. द फर्स्ट वन, द थीफ स्टोल अ पर्स फ्रॉम निर्मलाज ऑफिस. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू ओवर हियर फर्स्ट? सबसे पहले फाइंड आउट द वर्ब. सो द वर्ब इज स्टोल, ठीक है, और स्टोल का बेस फॉर्म क्या होगा? स्टील. सो व्हेन आर वी राइटिंग अ नेगेटिव सेंटेंस, इट वुड बी द थीफ डिडंट स्टील. ओके, द थीफ डिडंट स्टील अ पर्स फ्रॉम निर्मलाज ऑफिस. स्टोल का हो जाएगा स्टील, ओके, और डिडंट ऐड करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. Second one, Vasu gave Mala a book to read. Now here, what is the verb students? Gave. और give का base form क्या होगा? Give. ठीक है, और जैसे कि इसके अंदर action verb है, so we are going to add didn't.
So your answer would be Vasu didn't give Mala a book to read. Let's see the third one. Mohsin was able to solve the sums. Now students, what is the verb over here? Yes, we have the be verb, that is was. So what are we going to do? We are just going to add not to it. तो ये हो गया आपका Mohsin wasn't able to solve the sums. Okay. Fourth one, Trishna came home last evening from college. So here the verb is came और उसका जो बेस फॉर्म है वो क्या होगा? come. Okay. And as we are using come, उसके साथ हमारा जो दूसरा वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो है didn't. Trishna didn't come home last evening from college. The last one, the rabbit hid in the hole. Here the verb is hid और उसका बेस फॉर्म होता है hide. And we are going to use the helping verb didn't. So your answer would be the rabbit didn't hide in a hole. So I hope that your negative sentences formation is clear to you all. So now let's move on to the questions. Okay, so students, we are done with the negative sentences. So let's move on to the questions. How are we going to form the questions in the past tense? The only thing we are going to change in the question is you have to bring the verb first, whether it is be verb or whether you are using the helping verb, that is did. Okay, didn't. If you are using the helping verb did, you are bringing that verb before, and if there is a be verb जैसे कि was या were है तो उसको हम सेंटेंस के बिगिनिंग में लाएंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे. ठीक है. एंड दैट इज हाउ यू मेक अ क्वेश्चन. नॉर्मली अगर सेंटेंस में बी वर्ब होता है तो हमारा वो येस नो वाला क्वेश्चन बनता है. ठीक है. जैसे कि सी द एग्जाम्पल ओवर हियर, गंगा वॉज टायर्ड. इफ यू सी दिस, गंगा वॉज टायर्ड. सो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? वॉज है ना. तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम वॉज को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में. वॉज गंगा टायर्ड, राइट. So what we do, we interchange the position of the be verb and the subject to make yes and no questions. But if the sentence does not have a be verb, मतलब उसके अंदर सिर्फ action words है, जो हमारे verbs है, action words जो main verb है. ठीक है. तो उसमें हमें सेंटेंस का जो बिगिनिंग है वो डिड यूज़ करना पड़ेगा. अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो, अगर नेगेटिव है तो डिडंट यूज़ करेंगे. राइट. नाउ सी ओवर हियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस में अगर बी वर्ब है मतलब वॉज या वर्ब, यहाँ पे आपका जो बी वर्ब है वो कौन सा होगा? वॉज और वर. ठीक है. सो व्हेन यू हैव दैट, at that moment what are you going to do? You would be using that first was या were और उसके बाद आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे. ठीक है. एंड द रिमेनिंग पोर्शन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नाउ if a sentence does not have be verb, for example if you can see over here, mother cooked dinner. Here the verb is not a be verb, मतलब was या were नहीं है, उसकी जगह पर एक्शन वर्ड है. ठीक है. तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? डिड यूज़ करना पड़ेगा. और जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि जब हम सेंटेंस में डिड यूज़ करते हैं, डिड नॉट यूज़ करते हैं, राइट. नेगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं? डिड नॉट यूज़ करते हैं. एंड अलॉन्ग विथ इट अवर वर्ब विच इज़ इन पास्ट टेंस हैज़ टू बी रिटर्न इन बेस फॉर्म. तो डिड के साथ आपका जो वर्ब था कुक्ड, right, we removed the ed and made it into the base form. So your question would be, did mother cook dinner? So you need to remember the formation. If there is a be verb, we are just going to use that be verb, okay, and then subject और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. लेकिन अगर सेंटेंस में बी वर्ब नहीं है और हम डिड यूज़ करते हैं तो हम डिड यूज़ करेंगे, उसके बाद
यहाँ पे डिड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये आपको याद रखना होगा कि हम डिड यूज़ करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अवर वर्ब विच इज़ इन बेस फॉर्म, मतलब V1। जो आपका क्वेश्चन दिया होगा उसमें वो वर्ब पास्ट टेंस में होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू ऐड डिड, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो आपका वर्ब दिया हुआ है उसको हम बेस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दे प्लेड क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, सो हियर ऑल्सो यू कैन सी व्हाट इट इज, प्लेड का हो गया प्ले एंड दे एडेड डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ मान लो कि आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, राइट, तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन भी नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं एट दैट टाइम यू कैन ऐड नॉट और कॉन्ट्रैक्शन एंटी टू द सेंटेंस टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, he was not sure about the title. So what are we going to do? We are going to bring this whole thing, was not पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, he was not sure about the title. Was not he sure about the title? Now here you can see instead of was not उन्होंने wasn't यूज किया है, जो कॉन्ट्रैक्शन है। नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एन अपोस्ट्रॉफी टी, ठीक है। सो wasn't he sure about the title? Now see the second one, they did not visit the fort. Over here they have written did they not visit the fort. Now instead of this you can also write didn't they visit the fort. Okay, did you understand? अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है did they not visit the fort, that is also right. and if you write didn't together, मतलब did और not को अगर आपने साथ में ले लिया है तो भी चलेगा, ठीक है। see here the example is given, we did not make chapatis. so what did they do over here? see यहाँ पे उन्होंने डिड और नॉट को साथ में ही रखा है। वी जो डिड नॉट है वो पहले आ गया, है ना, और उसके बाद वर्ब और उसके बाद जो हमारा सॉरी डिड नॉट के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो हमारा वर्ब है बेस फॉर्म में वही रखा है। सो आपका क्वेश्चन बनेगा डिडंट वी मेक चपातीस। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद बोथ द फॉर्मेट। जैसे यहाँ है देखो, दे डिड नॉट विजिट द फोर्ट, अभी उन्होंने डिड दे नॉट विजिट लिखा है, लेकिन वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब पूरा डिडंट जैसे हमने वॉजंट लिखा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिडंट लिख सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको यही चीज़ याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा आपका तो उसका जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगा। तो जब आप डिड यूज़ करोगे सेंटेंस में तो आपको वो वर्ब बेस फॉर्म में लाना है, ओके। Now let's see the exercise related to it. Change these sentences into yes or no questions. First one, Peter rang me yesterday. So here the verb is rang, right? Now when we make a question, इसके अंदर जो verb है वो क्या है, action word है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, did. Did Peter ring me yesterday? Now you need to understand ये rang जो है वो past tense है और उसका बेस फॉर्म क्या होगा, रिंग होगा, और डिड यूज़ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखना मत भूलना। डिड पीटर रिंग मी यस्टरडे, ओके। लेट्स सी द सेकेंड वन, ही डिड नॉट वॉन्ट टू यूज़ साइकिल। नाउ इफ़ यू सी दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें डिड नॉट यूज़ हुआ है, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इट्स वेरी ईजी, हमको सिर्फ डिड नॉट को पहले ले लेना है और सब्जेक्ट बाद में, और इसमें जो वर्ब है आपका वॉन्ट वो तो ऑलरेडी बेस फॉर्म में ही है क्योंकि हमने डिड यूज़ किया है ना, इसलिए, ठीक है, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो हमको जब क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, डिडंट
he want to use your cycle? Question mark. Didn't he want to use your cycle? Third one, Vineet wasn't well last week. Now again this sentence is negative और उसमें wasn't है ही, तो हमें सिर्फ wasn't को पहले लेना है. So our answer would be wasn't Vineet well last week. उसके बाद क्वेश्चन मार्क. ठीक है, wasn't Vineet well last week. Next one, fourth one. They went to Malaysia last year. Now over here we just have an action word that is went. मतलब गए थे. तो went का बेस फॉर्म क्या होगा? go होगा, है ना? go, went, gone. So यहाँ पे हमें did ऐड करना पड़ेगा, right? So the question would be, did they go to Malaysia last year? Okay. Reenu went to a dance show. Again over here also हमारा verb क्या है? went. और उसका base form क्या होगा? go. So what would be our question? Did Reenu go to a dance show? Question mark. Okay. Did Reenu go to a dance show? So students, I hope that you are clear with the formations of questions, that is positive and negative both. Now exercise F, complete the following sentences by using the appropriate forms of the verbs in the brackets. Not all of the sentences are in simple past tense. So the verbs are given in the bracket. You have to use the proper form of the verbs. और हर एक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो वो ज़रूरी नहीं है. सो आई होप दैट यू वुड ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज एफ एंड ऑल्सो एक्सरसाइज जी, जो है फिल इन द गैप्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. आई वुड बी सेंडिंग यू अनदर वीडियो related to this two exercises, but try to do it by yourself first, okay? And if you have any doubts, you can ask me in the live class. Thank you and see you soon.